رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الذی سمی فی السماوات بأحمد وفی الارضین ابی القاسم محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ صلوات پڑھیں۔ ہمارا موضوع روحانی بیماریاں، اس حدیث کے ذیل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور بدن کا علم۔ کیونکہ انسان کا بدن بھی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جہاں روحانی چیزیں ہوتی ہیں وہاں جسمانی چیزیں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جسمانی بیماریاں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، لیکن اس عشرے میں ہم نے روحانی بیماریوں کے اوپر اپنا موضوع قرار دیا ہے، کیونکہ جو روحانی بیماریاں یا قلب کی بیماریاں یا مرض القلب کہیے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان من البلاء فاقہ، بڑی بلا جو ہے فاقہ ہے، فقیری ہے، تنگ دستی ہے، لیکن اس سے بڑی بلا کیا ہے؟ واشد من ذالک مرض البدن، اس سے بڑی بلا انسان کی جسمانی بیماریاں ہیں۔ واشد من ذالک مرض القلب، اور اس سے بڑی زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ شدید تر جو بلا ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں۔ وَإِنَّ مِن نِعَمِ السَّعَادَةِ الْمَالِ، اور جو نعمت کی سعادت ہے اس میں مال کی سعادت، مال کا حاصل ہونا ایک بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی سعادت کیا ہے؟ افضل من ذالک صحت البدن، بدن کا صحت مند ہونا، یعنی جسمانی طور پر صحت مند ہونا، یہ بڑی سعادت ہے۔ وافضل ذالک تقوی القلوب، اس سے بھی بڑی سعادت کیا ہے؟ کہ دل کا صحیح و سالم ہونا، دل میں کوئی مرض نہ ہونا، دل میں تقوی ہونا۔ امالی توسی بہار الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی کے ذیل میں ہم گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ بیماریوں کے متعلق جو روحانی بیماریاں ہیں بیان کرتے آئے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہم لیں گے وہ ہے غصہ، اینگر۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھیں گے اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے اور روایات کیا کہتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور انسان کے جسم پر اور اس کی روح پر یہ کیا اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ 61 آیت میں آیت وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہاں پر پہلے اس نقطے کو بیان کروں کہ غضب جو ہے یا پھر غصہ جو ہے یا خشم کہیے، ایک انسان کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا ہے۔ اور انسان کا بھی جو غصہ ہے یا جو خشم ہے وہ بھی دو طرح کا ہے۔ پہلے ہم اللہ کے غصے کے متعلق بیان کریں گے، تھوڑا سا آپ کو معلومات دیں گے، اس کے بعد انسان جو ہماری اصل ٹاپک ہے اس پر آتے ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ 61 آیت وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ پلٹے اللہ کے غضب سے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، بنی اسرائیل، اللہ کے غضب ان پر ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا یا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔
تو ظاہر سی بات ہے آج بھی کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غضب، یعنی غضب کو اب ہم ایک عذاب ہی لیں گے کہ اللہ کا جو غضب ہوگا وہ عذاب کے مقابل ہوگا، کیونکہ یہاں پر صرف غضب کی بات ہے، وہ باؤ بھی غضب من اللہ، وہ پلٹے اللہ کے غضب کو لے کر۔ کیوں؟ دیکھیے اللہ کا غضب اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کوئی عذر کے۔ جب نبی کوئی آتا تھا اور ان کو دعوت دیتا تھا، جب بات ان کے حق میں نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، یحییٰ کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جو پلان بنایا تھا قتل کرنے کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ دیکھیے نبیوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ کا عذاب کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے غضب کی بات ہو رہی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور کیا ہے کہ عصوا یعنی معصیت اور گناہ، اس لیے بھی کہ یہ گناہ بھی کرتے تھے اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اب یہاں پر لیجئے کہ حد سے بڑھنا اور گناہ کرنا، نبیوں کو قتل کرنا اور اللہ کی آیتوں کو نہیں ماننا، تو یہ کس کے مستحق ہوگا؟ غضب کے مستحق۔ یہاں جو غضب ہوگا وہ ایک اللہ کا عذاب ہے۔ یہ تو ہوئی بات اللہ کی۔ اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں کہ جو خشم ہے، جو غصہ ہے، وہ انسان کا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جہاں تک انسان کے غصے کی بات ہے، اس کے بھی دو پہلو نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک اندر چیز رکھی ہے غصہ انسان کے، تو اس کو کہاں یوز کرنا ہے کہاں نہیں یوز کرنا ہے۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے خشم مقدس، یعنی ایک اچھا غصہ، یعنی اس وقت آئے گا، اس وقت غصہ آنا جب کوئی اللہ و رسول کے خلاف کوئی بات کرے، اللہ و رسول یا اس کے احکامات اور اس کے جو قانون و ضوابط پر کوئی آنچ آئے اور اس کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہوں، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا انسان کے اندر اس کے لیے اگر کوئی غصہ آتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اس غصے کو کہیں گے خشم مقدس، یعنی اچھا غصہ۔ لیکن آج جس پر ہم آگے بات کر رہے ہیں وہ ہے خشم مذمومہ، یعنی جس کی مذمت کی گئی، اس غصے کے بارے میں۔ یہ جو غصہ ہے ویسے بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر۔ غضب کیا ہے، غصہ کیا ہے؟ مفتاح کل شر، چابی ہے ہر شر کی چابی۔ یعنی جتنے بھی انسان جو گناہ انجام دے رہا ہے، یعنی بڑے بڑے جو فسادات ہو رہے ہیں، اس کی ایک چابی کیا ہے؟ غصہ۔ جہاں خون ریزی بھی آپ دیکھ لیں گے غصے کی وجہ سے، باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور باپ نے بیٹے کو قتل کیا یا بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اسی طرح بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ یہ ایسے بہت سے اخبارات میں بھی آپ پڑھیں گے آج کے دور میں بھی۔ تو یہ سب غصے کی وجہ سے بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے اور بھی نقصانات سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زبان ایک دوسرے پر، جیسے کہ کوئی درندہ ہو پھاڑ کھانے کے لیے، مولا علی نے فرمایا ہے کہ زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دے تو پھاڑ کھائے۔ تو اس طرح جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کسی کو بھی پھاڑ کھانے کے لیے اتر آتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہم صلی من لم یملک غضبہ لم یملک عقلہ، یعنی جو اپنے غصے کا مالک نہیں ہے وہ اپنے عقل کا بھی مالک نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کا غضب اس کی عقل پر غالب آتا ہے تو وہ عقل کا غلام ہو گیا، یعنی وہ اپنے عقل کا مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو وہ اپنے عقل سے اپنے غضب کو کنٹرول کرتا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث، لیس منا من لم یملک نفسہ عند غضبہ، کتنی سخت حدیث ہے یہ۔ امام فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یملک، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یملک نفسہ، جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، عند غضبہ،
उसको जब गुस्सा आता है और वो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो हम में से नहीं है। ये जो अभी हदीस पढ़ी है वो किताब काफी में है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 637, हदीस नंबर 2। उसी तरह एक और हदीस इमाम फरमाते हैं, ला अदब मा गज़ब, यानी जिसके पास गुस्सा होता है उसके पास अदब भी नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बहुत से ऐसे मकामात आए हैं कि रसूलुल्लाह के पास लोग आकर कहते थे कि हमें कुछ नसीहत कहे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनको ये कह देते थे कि तुम गुस्सा मत करो। उसी तरह एक शख्स आता है, रसूलुल्लाह से दरख्वास्त करता है कि मुझे कुछ मुआवजा करें या मुझे कुछ नसीहत करें, तो उसको रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुम खश्मीन न होना, यानी तुम गुस्सा ना होना। इतनी ही नसीहत सुनकर वो अपने जो देहात है, अपने गांव है, चला जाता है। तो पहले का जो माहौल था आप जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात पर तलवारें मयान से निकल आती थी और एक कबीला दूसरे कबीले को मारने के लिए तैयार होता था छोटी छोटी बात पर, और ये जो दुश्मनी है सदियों तक खत्म नहीं होती थी। तो उसी तरह वहां पर एक माहौल बना हुआ था कि ये जो शख्स अभी रसूलुल्लाह से नसीहत लेकर आया है, वो पहुंचते ही देखा कि उसके कबीले वाले और दूसरा एक जो कबीला है उसमें कुछ अनबन हो गई है, किसी ने यहाँ की चीज वहां की कर दी थी। तो ये भी फौरन तैयार हो जाता है अपने वो जो लिबास वगैरह पहन कर, तलवार वगैरह लेकर। तो एक मर्तबा उसको याद आती है रसूलुल्लाह की बात कि गुस्सा ना होना। तो अब फिर वो थोड़ा सा नरम होकर अपने कबीले में जाता है और पूछता है कि क्या हो गया। तो उसको जब किस्सा बताया दिया, तब वो क्या करता है कि दूसरे कबीले का जो सरदार था उसको जाकर बात करके कहता है कि आपका जो क्या नुकसान हो गया है वो नुकसान मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। जब दूसरा सरदार देखता है कि ये तो बहुत मुतमईन होकर बात कर रहा है, कोई गुस्से से बात नहीं कर रहा और जो नुकसान हुआ है उसके देने की बात कर रहा है, तो वो भी गैरतमंद था। वो भी कहता है कि अगर आपकी ऐसी पेशकश है तो हम भी जो हमारा नुकसान है वो छोड़ देते हैं। तो मामला मिट जाता है। तो इस तरह देखिए एक शख्स आता है, रसूलुल्लाह से सवाल करता है कि मुझे कोई ऐसी नसीहत करें कि उसके बाद मेरे और जन्नत के बीच में कोई फासला ना हो। तो रसूलुल्लाह उसे वही कहते हैं कि तू गुस्सा ना होना। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक हदीस आपके सामने पेश करूंगा। कहते हैं कि मन मलिका नफ्सहु इज़ा रगिबा व इज़ा रहिबा व इज़ा इश्तहा व इज़ा गज़िबा व इज़ा रज़िया हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार। क्या कहते हैं कि जो शख्स रगबत के वक्त, यानी किसी चीज की रगबत हो उसे, उस वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल करे, कोई ख्वाहिश हो उसे तब वो अपने नफ्स को कंट्रोल करे, खौफ के वक्त अगर वो अपने आप को कंट्रोल करे, गुस्से के वक्त इज़ा गज़िबा, गुस्से के वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल करे, या फिर खुशी के वक्त, यानी ज्यादा खुशी भी नहीं होना है और ज्यादा गमज़िदा भी नहीं होना है, यानी एक एतदाल जिंदगी। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या, हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार, अल्लाह ने हराम किया उसके जसद को या उसके जिस्म को, उसके बॉडी को, किसके पर, अलन्नार, आग पर। तो देखा आपने कि ये जो रिवायात और ये अहादीस और कुरान से ये साबित होता है कि गुस्सा करना इंसान के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जब इंसान गुस्सा होता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है। नतीजा हमने बताया कि फसादात होते हैं, फिर उसका नतीजा क्या होता है, इंसान पशेमान होता है। मौला अली फरमाते हैं कि गुस्सा होने वाला हमेशा पशेमान होता है। अगर इंसान पशेमान नहीं होता तो इसका मतलब उसका दीवानापन अबदी है। तो ये पशेमानी, हर इंसान पशेमान होता है गुस्सा जब उतरता है। तो उसके बाद जिस्म पर क्या असरात होते हैं, उसके जिस्म पर बहुत बुरे असरात होते हैं, रूह पर भी उसी तरह उसके बुरे असरात होते हैं। जिस पर क्या कि देखिए ब्लड प्रेशर आजकल जो है वो गुस्से के वक्त ज़्यादा बढ़ता है, मुश्किलात, फिर पेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी गुस्से की वजह से होते हैं, और बहुत सी ऐसी दिल की बीमारियां हैं जो गुस्से की वजह से होते हैं। और सबसे बड़ी खराबी क्या आती है कि लोग उससे दूर रहते हैं, ये बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी कहेंगे तो कुछ भी कर देगा। तो इस तरीके से
इंसान लोगों से भी दूर होता है। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर बीमारी के बाद जो रूहानी बीमारी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका इलाज भी आपको बताएं। तो अब ये गुस्से का क्या इलाज है, तो हम यहाँ पर कुछ इलाज आपको बता रहे हैं कि सबसे बेहतरीन इसका इलाज यही है कि ऐसी चीज़ों से कि जिस पर तुम्हें गुस्सा आता हो दूर रहें। इंसान कोशिश करे कि वो जिस पर उसे गुस्सा आता हो उन चीज़ों से दूर रहे, और खुद किब्र और हसद ऐसी चीज़ों से भी दूर रहे, क्योंकि हसद की वजह से भी इंसान को गुस्सा आता है। जो किब्र है, उसका जो तकब्बुर है, उसकी वजह से भी उसे गुस्सा आ सकता है। दूसरा ये कि जो आयत कुरान है और जो अल्लाह ने जो अजाब रखा है, गुस्से के बाद इंसान जो अमल करता है उससे जो पशेमानी होती है, उससे जो अमाल सरसद हो सकते हैं या उससे जो नुकसानात हो सकते हैं, उसके मुतालिक जो अहादीस हैं, जो रिवायत हैं, उस पर भी वो तवज्जो दें। और फिर ये कि जो इंसान के जो दोस्त अहबाब होते हैं, तो ऐसे लोगों से भी वो दूर रहे कि जो ज़्यादा गुस्से वाला हो, क्योंकि सोहबत का असर होता है। अगर कोई ज़्यादा गुस्से वाले के साथ आप फिरेंगे चलेंगे तो वो सोहबत का असर आपके अंदर भी आ जाएगा। तो इसके लिए ऐसे लोगों से दूरी रहें जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अल्लाह का गज़ब है उसको याद करें। अगर तुम गज़ब ना होगे तो अल्लाह भी गज़ब ना होगा। अगर तुम किसी को माफ़ करोगे, किसी पर रहम करोगे, तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल गज़ब मिनश शैतान, शैतान से है ये जो गज़ब है, जो गुस्सा है, शैतान का काम है। और वह इन्ना शैतान खुलिका मिनन नार, और शैतान आग से बनाया गया है। वह इन्नमा नुत्फ़उन नार व बिल मा, और उसका जो नुत्फ़ा है वह पानी का है। तो क्या नतीजा निकाल रहा है, फ़इज़ा गज़िबा अहदुकुम फ़ल्यतवज़्ज़ा, यानी जब कोई गुस्से में हो तो उसको चाहिए कि वज़ू करे। यहाँ पर वज़ू करने की बात आ रही है, कई एक जगह पर पानी पीने की भी बात आ रही है, कई एक जगह पर अगर खड़े हों तो बैठने की और बैठे हों तो खड़े होने की भी बात आ रही है। तो इस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप गुस्से की इस रूहानी बीमारी से दूर होंगे। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद व आले मोहम्मद। तारीख का अगर मुताला किया जाए, रसूलुल्लाह की अगर ज़िंदगी देखी जाए, रसूलुल्लाह ने क्या किया कि पहले जो वहाँ पर कानून था, बुत परस्ती थी, उसका इनकार किया। रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में जो मौजूदा कानून है उसका इनकार किया, क्योंकि वो ज़ालिमाना कानून था, हर वक्त हर जगह जुल्म हो रहा था, और अल्लाह के निज़ाम को कायम किया। रसूलुल्लाह ने अपनी इन बेसत के बाद जो 23 साल ज़िंदगी है उसमें पूरा मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत का इनकार करके अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के कानून को नाफिज किया है। और अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी देखी जाए तो वो भी अपनी जो ज़िंदगी है वहाँ जो तकलीफ़ उठाई है वो सिर्फ इसलिए उठाई है क्योंकि उन्होंने भी वक्त की जो हुकूमत थी उसको नहीं माना, बल्कि जो रसूलुल्लाह ने निज़ाम बनाया था उस पर डटे रहे और किसी की बैयत नहीं की। और जब उनको चौथी खिलाफत मिली है तो उन्होंने जो नुकसानात हुए थे रसूलुल्लाह के निज़ाम को, उसको सही किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आप देखें और जो करबला जो हुआ है वो इसी बात पर हुआ है क्योंकि उन्होंने हुकूमत को नहीं माना, इस जालिम हुकूमत को नहीं माना। तो यहाँ पर बात ये कहने की है कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी भी एक हुकूमत को नहीं मानकर अल्लाह के निज़ाम को कायम कर रही है। मौला अली की ज़िंदगी में भी मौला अली अल्लाह के हुकूमत को कायम कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चूँकि अल्लाह की हुकूमत पर कोई दूसरा बैठा हुआ है उस हुकूमत को नहीं मान रहे हैं और अपने आप को अल्लाह की राह में शहीद कर रहे हैं। क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम भी उनकी सुन्नत पर चलकर दुनिया में जहाँ भी कोई जो भी हो वहाँ अल्लाह के निज़ाम को कायम करने की कोशिश करें? क्या ये सुन्नत नहीं है? क्या हमें सिर्फ जो इमाम हुसैन के जिस्मों पर जो ज़ख्म लगे हैं उसी को बयान करना है और जो दिल पर जो हम आज भी ज़ख्म लगा रहे हैं उसकी हमें परवाह नहीं है? हम किस तरह ज़ख्म लगा रहे हैं? हम मकसद हुसैन को नहीं समझ रहे हैं। मकसद हुसैन ये था कि उम्मत को
उम्मत को जागरूक करे, उम्मत को जगाए और ये बताए कि देखो तुम्हारे ज़माने में भी कोई ऐसी हुकूमत आ जाए, ज़ालिमान हुकूमत आए, तो तुम भी इसी तरह खड़े होना उसके मुकाबले में। लेकिन हम डर कर बैठे हुए हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में एक ज़ालिम हुकूमत है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अपने मजालिस कर रहे हैं, मसाइब पढ़ रहे हैं, फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हम मकसद हुसैन को नहीं समझ रहे हैं, ना उसके लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं। ये हकीकत बात है जो इस मजलिस के थ्रू मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये भी हमने बयान किया है गुज़िश्ता 2-3 मजालिस में कि किस तरह कैसे कैसे लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले हैं और किस तरह के लोग ऐसे थे जिसके बारे में माविया ने यजीद को नसीहत की थी कि ये लोग तेरी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इससे तुझे कुछ खतरा नहीं। वो कैसे लोग थे? एक तो दुनिया परस्त लोग थे, दुनियादार, दुनिया की हवस रखने वाले, और एक वो लोग थे जो सिर्फ मस्जिद हो, महराब हो, कुरान हो, दुआ में मशगूल होने वाले। ऐसे लोगों से भी यजीद को कोई खतरा नहीं था। और तीसरे ऐसे भी लोग थे जो चालबाजी करते थे, यानी वक्त पड़ने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ देंगे और अगर वक्त पड़ने पर यजीद का भी साथ दे सकते हैं, या अपने मतलब से जीने वाले लोग। सिर्फ यजीद को सबसे ज्यादा खतरनाक खतरा था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से था। और हमने बताया है कि जो अमेरिका में एक थिंक टैंक है, वो थिंक टैंक थिंक करके अपना मशवरा देती है हुकूमत को, और उन्होंने भी इसी तरीके से पूरे मुसलमानों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ऐसे लोग जो सिर्फ दुआ और नमाज और रोजे और मजालिस और इसी में भी मशगूल रहेंगे, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनसे कोई खतरा नहीं है। एक ऐसे लोग हैं जो दुनिया परस्त हैं, अगर कुछ करने भी आएंगे इनको खरीदा जा सकता है। एक ऐसे लोग हैं जो जिनसे खतरा नहीं है, वो ये हैं कि वो हमारे समझाने पर वो समझ जाएंगे या हमारे बहकाने पर बहक जाएंगे। लेकिन सिर्फ खतरा उन लोगों से है जो इस्लाम को एक आइन समझते हैं, एक दीन समझते हैं, एक कानून समझते हैं और उस कानून को हर जगह नाफिज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने दिल में ही सही, अपने घर में सही, अपने मोहल्ले में सही, अपने कॉलोनी में सही, अपने इलाके में सही, या अपने मुल्क में सही। अगर मुल्क में नामुमकिन है तो अपने शहर में सही, शहर में नामुमकिन है अपने इलाके में, अगर इलाके में नहीं मुमकिन है अपने कॉलोनी में सही, अपने कॉलोनी में नहीं मुमकिन है अपने घर में सही, या अपने दिल में सही। अल्लाह के कानून को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। जो कुरान है वो अल्लाह की किताब है और रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी इसी के लिए अपनी जिंदगी बिताई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इसी के लिए अपनी जान दी है। हम ये कहते हैं कि लिव लाइक अली एंड डाई लाइक हुसैन। इसका मतलब क्या है कि जियो तो अली के जैसा जियो, जिन्होंने हुकूमत को मानने से इनकार किया, और मरो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह शहीद हो जिन्होंने जालिम हुकूमत का इनकार किया। तो क्या हम सिर्फ ये कहने के लिए है कि लिव लाइक अली और डाई लाइक हुसैन? एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर कुछ ऐसे भी अफराद आपके सामने मैंने बयान किया है कि कुछ ऐसे हैं जैसे अब्दुल्ला जौफी की तरह, जो अपना माल देने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी असहाब थे जिन्हों को मौला ने कहा था कि मैं बत्ती गुल कर देता हूँ, जिसको जिधर जाना हो चले जाइए, और जन्नत में भी जो मकाम है वो आपका मकाम वैसे मिलेगा, वैसे ही रहेगा। तो उन्होंने अपने सर पर, अपने गले पर तलवार रखकर कहा था कि या मौला आपके लिए ऐसे 70 जाने कुर्बान। तो देखा, ये जज्बा होना चाहिए हमारे दीन के मुताबिक। तो उसी तरह जब करबला में लश्कर पर लश्कर आ रहा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई नहीं आ रहा, तो एक मरतबा बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, भैया ये लश्कर किसके लिए आ रहा है? तो इमाम ने कहा कि ये हमारे दुश्मनान हैं। तो बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, क्या हमारा कोई दोस्त नहीं है? क्या इस वक्त हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा? तो इमाम फरमाते हैं कि मैं अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखता हूँ, वो आएंगे। एक मरतबा कासिद को बुलाया, कासिद को खत लिख कर दिया। खत में लिखा कि इला रजुलुन फ़क़ीह मिन हुसैन इब्न अली। रजुलुन फ़क़ीह लिखा हबीब इब्न मज़ाहिर को। और जब कासिद पहुँचता है खत लेकर, तो एक मरतबा हबीब अपने ज़ौजा के साथ दस्तरखान पर बैठे हुए हैं और खाना तनावुल करना चाहते ही थे
कि एक मरतबा दस्तक होती है। दस्तक देखा कि कौन है, तो कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हबीब ने मज़ाहिर जो हैं वो फौरन जल्दी से जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और देखा कि एक खत है। खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने पास रखा, आकर फिर दस्तरखान पर बैठ गए। बैठने के बाद ज़ौजा पूछती हैं, हबीब क्या हुआ, किसका खत था, क्या लिखा है? तो हबीब ने कहा हुसैन का खत है। क्या लिखा है? लिखा है कि हम नरगे आदा में घिर गए हैं, आपकी मदद चाहिए। तो एक मरतबा ज़ौजा कहती हैं, हबीब क्या सोचा फिर? कहा कि सोच रहा हूँ जाऊं या ना जाऊं। एक मरतबा ज़ौजा ने कहा कि हबीब हुसैन तुम्हें बुला रहा है और तुम सोच रहे हो कि जाऊं या ना जाऊं। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो ये तलवार मुझे दे दो, मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगी। एक मरतबा हबीब कहते हैं कि ज़ौजा, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था, मैं देख रहा था कि आप क्या कहती हैं और ये भी चाहता था कि आप इसमें इस सवाब में शामिल हो जाएं। मैं ज़रूर जाऊंगा, इमाम बुलाएं, हुसैन बुलाएं और मैं ना जाऊं। हाँ आज़ादारों, एक मरतबा अपने गुलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम माहौल बहुत ख़राब है, आप ये तलवार लेना, ये मेरा घोड़ा लेना और कूफे के करीब जाकर, करीब जहाँ बाउंड्री होती है वहाँ जाकर रुकना, मैं बाद में आता हूँ। इतना कहना था। गुलाम चल पड़ता है। हबीब को आने में कुछ देर होती है तो किताबों में लिखा है कि गुलाम अपने घोड़े से कह रहा है कि अरे घोड़े तू घबरा मत, अगर आका के आने में देर हो गई तो मैं तेरे साथ हुसैन की मदद के लिए जा रहा हूँ। तो देखा आज़ादारों, एक ऐसा जज्बा था कि इमाम हुसैन इस्लाम के लिए मदद के लिए गुलाम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक मरतबा मैदान करबला में गुबार उठना शुरू होती है। सब ने देखा कि कौन आ रहा है, तो किसी ने कहा कि हबीब आ गए। वहाँ पर खैमों से आवाज़ दी बीबी ज़ैनब ने कि कौन आया है। किसी ने कहा कि हबीब आए हैं। तो एक मरतबा कहा हबीब को मेरा सलाम कहना। हबीब जो आते हैं देखते हैं कि पूरा ख़ानदान यहाँ पर है, तो एक मरतबा सर पीटा और कहा अरे हुसैन, एक ऐसा वक्त आया है कि पूरे आपने अपने बहनों को भी यहाँ पर लाया है। हाँ आज़ादारों, ये रिवायत किताब दमतुस सागिबा में आका मोहम्मद बाक़िर दहिश्ती बहबहानी नजफ़ी लिखते हैं कि हबीब इब्न मज़ाहिब मैदान में आए, रजस खानी की 62 यजीदियों को फिन्नार किया और फिर एक तमीमी के नेज़े से ज़मीन पर गिर पड़े। फिर उठना चाहा मगर हसीम बिन नमीर ने तलवार से वार किया, फिर उठ ना सके। बदील बिन खजीम ने आपका सर काट कर घोड़े पे लटका दिया। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।